پہلا بحران بے مقصدیت، دوسرے لفظوں میں اسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مقصد کے زندگی گزارنا۔ آپ کسی سے پوچھیں بھائی کیا بننا چاہتے ہو، بچوں سے ہم اکثر پوچھتے ہیں کیا بننا ہے، اس کا جواب شاید آپ کو ہر کوئی دے دے گا۔ کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں ٹیچر بنوں گا، کوئی بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کے جی فوجی بنوں گا، میں کوئی پولیس والا افسر بنوں گا، فلاں فلاں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ اگر دوسرا سوال کیا جائے کہ کیوں بننا چاہتے ہو، اس کا جواب شاید کوئی نہ دے کہ بننا کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے دل ہی میں آپ اور میں اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، میں بھی آپ بھی، شاید ہمارے پاس بھی اس کا جواب ہو کہ نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ بندہ، میں سوال اپنے آپ سے پوچھوں آپ بھی، کہ ہم زندہ کیوں ہیں، ہم کیوں زندہ ہیں؟ تو شاید یہ جواب ملے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، ہماری روح قبض کریں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ اچھا جانا تو ہے، یہ چوٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے آگے تو ہماری کوئی چلنی نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے، یہ تو ایک ہے۔ لیکن ہمارے پاس زندگی عموماً کوئی مشن نہیں ہے، زندگی کا ہمارا کوئی مشن، کوئی مقصد زندگی گزارنے کا نہیں ہے۔ بھائی ابھی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے بندہ کہتا ہے اب تو جانے کا ٹائم ہے، اب میں نے کیا کمانا ہے۔ ہمارا مقصد یہ کمائی جو بن چکا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ جو میں نے کہا نا، بے مقصدیت، یعنی ہمارے پاس کوئی مقصد ہی نہیں کہ ہم کیوں زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا اس کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ اب یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم آ رہا ہے، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے۔ ہم حضرت فاروق اعظم کی زندگی سے اپنی زندگی میں کچھ سیکھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی تک، اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز السلام باحبی ہذین الرجلین الیک بابی جہل و ابی عمر بن الخطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک دو بندے ہیں، ایک ابو جہل ایک عمر بن خطاب ہے، ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ابھی ایک دن ہی گزرا تھا دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں ایک تو ایمان افروز بات یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ پاک ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے پسند ہے، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرما۔ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ابو جہل کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے پسند ہی نہ کیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم کو اللہ نے پسند کیا، تو اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رب کو عمر پہلے ہی پسند تھا، اللہ کو پسند تھا تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہے، چنا اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستھرے کو، حبیب دین دارا حضرت فاروق اعظم ہے۔ اب دوسرے نمبر پر دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک سے کیوں مانگا۔
आप ये बात भी समझें कि क्यों मांगा। इसलिए मांगा कि गलबा इस्लाम के लिए, कहा अल्लाह गलबा इस्लाम के लिए उम्र अता फरमा। ये पॉइंट है जो हमारी जिंदगी में नहीं है। ये है वो मिशन जिस मिशन के लिए अल्लाह पाक से नबी पाक ने उम्र को मांगा था। हमारी जिंदगी में ये मिशन नहीं है जिस पर हजरत फरूक आजम रदी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी खड़ी है। ये वो मिशन है कि अल्लाह उम्र को इस्लाम की इज्जत के लिए अता फरमा। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, यानी जिस लम्हे हजरत उमर फरूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उस वक़्त से हम मुसलसल गलबा ही पाते रहे। कभी भी एक लम्हे के लिए भी हम कमजोर नहीं हुए। आप फरमाते हैं दूसरे जो साहबी हैं हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह अन्हु आप फरमाते हैं कि जब हजरत उमर फरूक रदी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उस वक़्त से इस्लाम की मिसाल ऐसे थी जैसे कोई शख्स हमारी तरफ आ रहा हो। दिन ब दिन इस्लाम की कुव्वत बढ़ती जा रही थी। जब आप शहीद हो गए, अब इस्लाम की हकानियत और सच्चाई में कोई कमी नहीं आई थी। आप जब दुनिया से पर्दा कर गए तो इस्लाम सच्चा है, इस्लाम की हकानियत और सच्चाई में कमी नहीं आई थी। लेकिन आप फरमाते हैं गलबे में कमी आना शुरू हो गई थी। जो गलबा था उसमें कमी आना शुरू हो गई थी। अब इस्लाम ऐसा था जैसे कोई शख्स हमसे दूर जा रहा है और वो हर कदम दूर होता चला जा रहा है, हमसे दूर ही होता चला जा रहा है। आप देखें हजरत उमर फरूक आजम रदी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में एक बड़ा मिशन था और आप उस मिशन पर खड़े रहे और जब तक आप दुनिया में मौजूद रहे, आपकी हर एक सांस इस्लाम को कुव्वत और गलबा और तरक्की देती रही। ये आपकी जिंदगी का मकसद था, ये मिशन था जो हमारे पास नहीं है। आपका हर एक सांस इस्लाम को तरक्की और अरूज देता जा रहा था। जितनी जिंदगी आपने गुजारी, क्योंकि शुरू से आपका इस्लाम में आना ये मकसद एक मिशन था कि इस्लाम को इज्जत मिले, तो जितनी जिंदगी गुजारी फिर इज्जत हर लम्हा बढ़ती जा रही है। साहबा फरमाते हैं, अच्छा आपको क्या लगता है कि जैसे हम बाजार से बल्ब खरीद के लाते हैं तो लगा दिया तो इससे रोशनी हो जाती है, मतलब बटन ऑन किया तो चल गया, बटन बंद किया तो ऑफ हो गया, ये मामला था? नहीं, ये मामला नहीं था, माज़अल्लाह ऐसा नहीं था। मिसाल के तौर पे बल्ब लाए हैं तो चलाया तो चल गया, बंद किए तो बंद हो गया। ये नहीं था कि हजरत फरूक को लाए हैं तो वो आ गए तो गलबा आ गया, चले गए तो गलबा कम हो गया, ये मतलब नहीं है। इसके पीछे हजरत फरूक आजम रदी अल्लाह अन्हु को लाकर मुसलमानों के बीच में खड़ा कर दिया तो इस्लाम में गलबा आ गया, आप चले गए तो गलबा कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिंदगी है, इसे डिजाइन करना पड़ता है। जिंदगी को डिजाइन करना पड़ता है, गुजारने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। जिंदगी ऐसे ही नहीं है कि बल्ब की तरह चल गई और बंद हो गई, नहीं, ये बकायदा गुजारने के लिए इसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। इसी तरह हजरत फरूक आजम रदी अल्लाह अन्हु ने जब कलमा पढ़ा, उसी लम्हे से आपने इस्लाम के गलबे के लिए काम करना शुरू कर दिया था, प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी, अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी इस्लाम के लिए। अब इसी मिशन को जब डिजाइन किया ना जिंदगी को, तो इस्लाम को हमेशा गलबा ही मिलता चला गया। आप हजरत फरूक आजम रदी अल्लाह अन्हु की सीरत पढ़ के देखें तो आपको उनकी जिंदगी में पैबंद लगा कपड़ा तो मिल सकता है, पैबंद लगे लिबास तो मिल जाएंगे, भूख के सबब पेट पर पत्थर बांधा तो नजर आ सकता है,
गैर मुस्लिमों और मुनाफिकों की तरफ से इल्जाम तराशियां आपको मिल सकती हैं, दुख दर्द तकलीफें परेशानियां, ये आपको मुआशी ऊंच नीच सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इस्लाम की इज्जत का गलबा और शान और शौकत में कमी आपकी जिंदगी में आपको नहीं मिल सकती। ये मिशन था। यानी आपकी जिंदगी में आपने पत्थर तो बांधे हैं पेट पे, ये तो नजर आएगा कि भूखे थे, लेकिन ये नहीं नजर आ सकता कि जब तक आप जिंदा रहे तो इस्लाम में गलबा, इस्लाम नीचे आया हो ना। इस्लाम की हक्कानियत और अरूज और बुलंदी में तरक्की ही तरक्की नजर आती है। यानी आपकी जिंदगी में एक मिशन था और आप अपने मिशन के लिए हर वक्त सरगर्म रहते थे, अपनी जिंदगी उसी तरह गुजारते थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, सीरत फरूक आजम हमारे लिए सबक है। बेमकसद ना हो जाए, अबस यानी बेकार ना बने, जिंदगी ना गुजारें, सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे कि पैसा पैसा पैसा, उठना बैठना सोना खाना पीना, बात यह कि पैसा पैसा हो रहा है। ये अबस जिंदगी ना गुजारें, इसका मिशन बनाएं। आपको तारीख में लाखों लोग ऐसे मिल सकते हैं जो करोड़ों खरबों रुपए के मालिक थे, नामो निशान तक नहीं है। आपको लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे, तारीख उठा के देखें कि बड़े बड़े नामवर, बड़े बड़े पैसे वाले, आज उनका नामो निशान नहीं मिलता। बड़ा पैसा कमाया, बड़ी मालो दौलत कमाई, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, सेकंड गुजरते हैं, लोगों की दौलत में इजाफा भी होता है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनका नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। पैसा पैसा पैसा, ये अबस जिंदगी है, बगैर मकसद के जिंदगी है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, पैसा जमा किया छोड़कर चले गए, नतीजा क्या निकलता है? बाद में कोई नाम लेने वाला नहीं होता। पैसा जमा किया, इतना जमा किया, कहां है आज? चले गए, पीछे झगड़े के लिए छोड़ गए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज उनकी कब्रों के नामो निशान नहीं मिलते। बनना, सवरना, हेयर स्टाइल बनाना, अच्छे लिबास पहनना, फैशन के पीछे चलना, ब्रांड कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे खाने खाना। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, महंगे से महंगे सूट पहनना, महंगे से महंगा जूता पहनना, बहुत महंगी घड़ी पहनना, महंगी गाड़ी में सफर करना, बड़ा महंगा मोबाइल चाहिए। आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे, ये जरूरी। हम इसी मिशन में लग चुके हैं कि बस ऐशो आराम हो, पैसा पैसा हो। ये एक मिशन अपनाया है, ये मिशन नहीं है, ये मिशन नहीं है। क्या मिशन अपनाएंगे? मिशन ये होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन मिशन है, ये सबसे आला मिशन है। आप डॉक्टर बन जाए, मैं मना नहीं करता। आप वकील बने, मैं भी मना नहीं करता, बनना चाहिए, जरूरत है। आप बड़े अफसर बने, आप जिंदगी के किसी भी शोबे में जाएं, आप मजदूर बन जाते हैं, मजदूर बन जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आला ओहदेदार बनकर या चाहे मजदूर बनकर, आपका एक मिशन होना चाहिए। मिशन ये होना चाहिए कि दीन की खिदमत करनी है। आपका मिशन ये हो कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, कि जिस हाल में भी मैं रहूं, मेरी जिंदगी कहीं भी गुजरे, मेरा मकसद एक है। वो एक काम क्या है? वो ये काम है कि मैंने दीन की खिदमत करनी है, मैंने दीन का काम करना है, दीन का नुकसान नहीं करना। अब अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, अब ये नुस्खा देखिएगा,
बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं, बड़ी बीमारियाँ, मुसीबतें, आजमाइशें हैं घरों में। तो अब मैं आपको आसान नुस्खा बता देता हूँ, किसी आमल कामल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लो जी, काम खत्म, सीधी बात है। कुरान फरमा रहा है, इन तंसुरुल्लाह यांसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब दूसरे मुकाम पर फरमाया, वाला यांसुरन्नल्लाह मन यांसुरु, और बेशक अल्लाह उसकी जरूर मदद फरमाएगा जो उसके दीन की मददगार है। अल्लाह जरूर उसकी मदद फरमाएगा जो उसके दीन के मददगार हैं। दो मुकाम हो गए। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कैसी उम्मीद दिलाने वाली बात है, कैसी प्यारी ये दो आयतें करीमा हैं। अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी मदद किसी मामले में की जाएगी, मुतलकन फरमा दिया। ये नहीं कि तुम्हारी मदद तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं तब की जाएगी, तुम्हें माल चाहिए तब की जाएगी, तुम्हें घर चाहिए तब की जाएगी, ये कुछ नहीं फरमाया। अल्लाह पाक ने मुतलकन फरमा दिया कि हर काम, नेक और जायज काम में तुम्हारी मदद की जाएगी अगर तुम दीन के मददगार हो। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, परेशान हाली है तो दीन का काम करना शुरू कर दें, तंग दस्ती है तो दीन का काम करना शुरू कर दें, बीमारी है तो दीन का काम करना शुरू कर दें, बेरोजगारी है तो दीन का काम करना शुरू कर दें, कोई बड़ा मकसद है, बरूने मुल्क जाना है तो दीन का काम करना शुरू कर दें, घर में लड़ाई झगड़ा है, नचाकी है तो दीन का काम करना शुरू कर दें। किसी मुकाम पर भी आप रहकर दीन का काम करते जाएं। अल्लाह पाक फरमाता है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद फरमाएगा। अब अल्लाह मदद फरमाएगा, अब परेशानी की बात क्या है? अब ये खिदमत दीन की बरकत है। मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि ज़िंदगी के हर शख्स की गुजर ही जाती है, गुजार ही देनी है। आप फरमाते हैं, बेहतरीन ज़िंदगी वो है जो अल्लाह पाक के लिए वक्फ हो जाए। काश हम अपने आप को दीन का मुस्तकिल खादिम बना दें, पक्के पक्के खादिम बन जाएं दीन के। इसकी बरकत से दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। आप सोच रहे होंगे दीन की खिदमत कैसे करें? हम तो काम पे जाते हैं, कारखाने में जाते हैं, हमारी तो मसरूफियत बड़ी है। मैंने पहले कहा, डॉक्टर बन जाएं, वकील बन जाएं, जज बन जाएं, बड़े से बड़े अफसर बन जाएं, अब मजदूर बन जाएं, छोटे से छोटा कोई काम करने वाले बन जाएं, लेकिन दीन के खादिम साथ साथ जरूर बने। अब दीन का काम, दावत इस्लामी का प्लेटफार्म आपके पास मौजूद है। 80 से ज्यादा शोबाजात हैं। आपके अंदर जो भी सलाहियत है आप उसी के साथ दीन का काम कर सकते हैं। आपके पास जो भी हुनरमंदी है उसके साथ ही आप दीन का काम कर सकते हैं। आप 2 घंटे दे सकते हैं, 2 घंटे दे दें दीन के लिए। 10 घंटे दे सकते हैं, 10 घंटे दे दें। मुकम्मल जिंदगी वक्फ कर दें। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इंशाअल्लाह करीम जिंदगी भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। अब दूसरा जो बहरान है, ये नुमाइश की दौड़ है। नुमाइश, ये दूसरा बहरान हमारे नौजवानों में, हमारे मुआशरे में आम है। आज हमारे नौजवान लाइक्स के लिए ना, लाइक्स मिल जाएं, व्यूज मिल जाएं, लोग देखें, मेरी वीडियो वायरल हो जाए, मेरे कपड़े, मेरा लिबास, मेरा पहनना, मैं हेयर स्टाइल बनाता हूं, दाढ़ी के स्टाइल बना बना के जूते कपड़े दिखाने के चक्कर में है। अब ये जो बहरान है, ये जो चीज है, इसको कैसे दूर किया जाए? हैरत की बात है, अर्ज करूं,
हम लोग कपड़े पहनते अपना जिस्म छुपाने के लिए, मकसद तो ये है। अब दूसरे तरफ ये हो गया है कि हम कपड़े पहनते हैं लोगों को दिखाने के लिए। अब पाँव को गर्मी ना लगे, ठंड ना लगे, कोई चुभ जाए, हमें पाँव में आराम मिले, जूता पहनते हैं इसलिए, लेकिन मकसद बन गया लोगों को दिखाना, कि लोगों को कैसे दिखाया जाए। मेरा हर दूसरा नौजवान, सारे नहीं मैं कहता, इसी दौड़ के पीछे लगे हैं। यही मकसद बन चुका है जिंदगी का, लाइक्स मिल जाएं, लाइक्स मिल जाएं, शेयर हो जाएं, मेरी वीडियो वायरल हो जाए, लोग के बड़ा मशहूर बंदा है ये, मैं जानता हूं ये बड़ा मशहूर है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अच्छा लिबास होना भी अच्छी बात है, अच्छा लिबास पहनना, अच्छा जूता पहनना बड़ी अच्छी बात है। हमारे नुमाइश की सोच खत्म अगर हो जाए तो ये बड़ी अच्छी नेमत है। अगर किसी को अच्छा लिबास मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छा खाने को मिले, बड़ी अच्छी बात है। अगर इसका मकसद ये हो कि पहनना किस लिए है, मुआशरे में अच्छे अखलाक हो, तो इसके लिए हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद बात है। लेकिन अगर हमारी सोच ये है, हमारा मकसद ये है कि नशो नुमा की जाए, फैशन लेवल दिखाया जाए, ब्रांड दिखाए जाएं, तो आज हमारी अक्सरियत बिलखसूस नौजवान ये इसी चक्कर में पड़ गए हैं। अब हमारे यहाँ हो क्या गया, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी बेहतर से बेहतर हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरे पास मोबाइल बड़ा अच्छा होना चाहिए। बल्कि एक मजे की बात अर्ज करूं, जो हकीकत में गरीब है ना, वो अब गरीब रहना ही नहीं चाहता। जो बंदा हकीकत में गरीब है, लोग कभी गुर्बत में भी मजा लिया करते थे, अब आज अगर कोई गरीब है तो हो क्या गया है, इसके नुकसान ये हुए कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों को देख देख के गरीब कहते हैं हमारी भी कोई जिंदगी है, कहते ना चंगा थे मारी जाए हम, हमारे भी कोई कपड़े हैं। वो लोगों के कपड़े देख देख के अपने कपड़ों का मजा भूल गया, लोगों की चीजें देख देख के अपनी जिंदगी भूल गया हमारा नौजवान। सोशल मीडिया की वजह से क्या हुआ, लोग वीडियो बनाने के लिए अच्छी चीजें पहन के दिखाते हैं, हमारे गरीब नौजवान काम पे ही नहीं जाते। आज बड़ा बहरान ये है, वो भाई फटाफट अमीर होना चाह रहे हैं। जिनके पास 8-10 कोई नौजवान, छोटे बच्चे, कोई बड़े नौजवान काम करते हैं, उनको पूछे कितनी आजमाइश बनी पड़ी है, किस वजह से, ये देख देख के, अमीरी फैशन देख देख के अपनी गुर्बत को अजीबोगरीब माहौल में ला खड़ा किया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक नुमाइश की दौड़ लगी है, हम लोगों की नजरों में अमीर और अच्छा बनना चाहते हैं। नतीजतन क्या होता है कि अपनी जिंदगी का मकसद भूल जाते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी भी भूल जाते हैं, और घरों के घर खराब हो रहे हैं। माँ बाप बेचारे बच्चों को कह रहे हैं काम पे जाओ, फुला काम कर लो, वो फैशन के चक्कर में वो काम नहीं कर रहा। कोई छोटा मोटा काम कह दे तो वो भी नहीं कर रहा। मैं ये काम करूं, मैं ये करूंगा, मैं तो मोहल्ले में अमीर गिना जाता हूं, मैं तो फैशन लेबल समझते हैं लोग, मुझे लोग क्या कहेंगे मैं ये काम करूंगा। तो अपनी असल जिंदगी का मकसद भूल चुके, अपनी जिंदगी लोगों को देख के खराब कर चुके। ये फैशन की दौड़ ने हमें अपनी मंजिल से दूर कर दिया। अपनी मंजिल से आशना हो जाएं, हमें पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन, आपकी सीरत पाक का हुस्न जानते हैं। वैसे आप आधी दुनिया के हुक्मरान थे। मैंने जो पहले बातें की हैं उसको ज़हन में रखिएगा, मैंने जितनी बातें की हैं सारी ज़हन में रखिएगा। आधी दुनिया का हुक्मरान है, आधी दुनिया का हुक्मरान। आप अंदाजा कीजिएगा कि दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाह, दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाहों की निगाहें आपकी तरफ होती थी। आज भी सुपर पावर की तरफ दिगर मुल्क देखते हैं ना, तो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु की तरफ
بڑے بڑے بادشاہ، ہر ایک نوجوان، ہر ایک فرد دیکھ رہا ہوتا تھا۔